Good morning, students. Here again, your Sunita ma'am. Welcome all of you in my channel, Dear Ma'am 06. So today, I'm bringing some passage, unseen passage writing for the practice for yourself. So this will definitely help you for your coming Assam Higher Secondary Board Class 12 final examination as well as for the CBSE courses also. And at the same time, this will also helpful for class 11 students. So let's start the class of today. So in today's discussion, here you will get total 4 passage, unseen passage. So here I will teach you some tricks of writing the passage writing. So you see here, this is the passage. It will start from, in spite of all the honors that we have heaped upon him, Pasteur, as has been said, remained simple at heart, perhaps the imagery of his boyhood days. So related on this passage, which is end up here, you see, some questions are given. Question number A, B, C, D, E. यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो even accolades and honors did not change the simple man that Pasteur was. Why? So marks to question number A. तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कहाँ से लिखना है, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे यहाँ पर मैंने टिक दे के रखा है. नंबर ए आप लोगों को, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वी हिप्ड अपॉन हिम पेस्टूर एज हैज़ बीन सेड से लेके कहाँ तक लिखना है? नेवर हुली लेफ्ट हिम. So if you have no capacity for creating power, then you can directly pick up the line and write down in your examination. So एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ से यहाँ तक लिखना है. तो अभी हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. How did Pasteur view those who suffered from diseases? So again 2 marks. So इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो बी, क्वेश्चन नंबर बी आंसर. For him each safari was something more than just a case that was to be cured. He looked upon the fight against hydrophobia as a battle, and he was absorbed in his determination to win. The sight of injured children, ये यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है? Patience, and yet he would not deny himself a share in that suffering. तो क्वेश्चन नंबर बी का हम लोगों को कहाँ से लिखना है? फॉर हिम से लेके यहाँ सफरिंग तक इसका आंसर आप लोग को एग्जाम में लिख के आ जाना है. अगर इस क्वेश्चंस का अगर ये क्वेश्चन कॉमन आ जाए एग्जाम पर तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड पेस्टूर एंगेज हिमसेल्फ इन द स्टेट. तो सी नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ पर देखो सी नंबर ऑप्शन. He retired to the estate at Villeneuve-Etang, where he had his kennels for the study of rabies, and there he passed his last summer, as his great biographer Valery Radot has said, practicing the gospel virtue. तो ये सी नंबर का आंसर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक लिखना है. So next question number D. What advice did he always to give his pupils? सो हम लोग को इसका क्या करना है? यहाँ से लिखना है. ये देखो डी नंबर ऑप्शन. इवन इन रिटायरमेंट ही लव टू सी हिज फॉर्मर पीपल्स, एंड इट वॉज देन ही वुड रिटायर्ड हिज लाइफ प्रिंसिपल्स वर्क. ही वुड से नेवर सीज टू वर्क. सो वेल हैड kept दिस precept that he began rapidly to sing from exhaustion. तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर डी का आंसर लिखना है. So now the final question, that is question number E. How did France, the country of his birth, honor these great scientists? तो इसका आंसर ई का नंबर का आंसर कहाँ से लिखना है? जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, फ्रेंच पीपल वर टू वोट ए plebiscite as the greatest man that France had ever produced. Napoleon, who had always been considered the idol of France, was placed 5th. तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर ए का आंसर लिखना है. सो अगर ये क्वेश्चन पैसेज डायरेक्टली आ जाए तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है? जैसे यहाँ पर मैंने टिक दे के रखा है, ए का यहाँ से यहाँ, बी से यहाँ, बी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ होगा, तो एग्जैक्टली आप लोगों को एग्जाम में यही लिख के आना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पेसेज नंबर 2. तो पेसेज नंबर 2 पर यहाँ पर क्या है देखिए. रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली. सो दिस इज 2070 फाइनल एग्जामिनेशन में ये आ चुका है. तो इस पेसेज अगर ये एग्जाम में आए तो आप लोगों को किस तरह इसका आंसर लिखना है देखिए.
ये ओमेन के ऊपर है ये पेसेज। टुडेज ओमेन इज अ हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन अलाइव टू सेंस ऑफ हर डिग्निटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर फंक्शन। सो ये यहाँ से लेके पेसेज कहाँ तक ख़त्म होगा, यहाँ तक शुरू होगा। देखिए यहाँ तक है इसका इस पेसेज का, तो एंडिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ टुडेज वीमेन। अगर ए नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। सो टुडेज वोमेन इज अ हाईली सेल्फ डायरेक्टेड से लेके क्या तक, कहाँ तक लिखना है, थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल तक लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी पर क्या है यहाँ पे, वेयर वाज द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड एंड व्हाट डिड इट एम्फसाइजेस। 2 मार्क्स। सो फॉर दिस कहाँ से लिखना है, द 4th वर्ल्ड। देखिए पहला पेज में ही है, पहला पैराग्राफ में ही हम लोग को यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अगर बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग आ जाए तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, द 4th वर्ल्ड। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने टिक दे के रखा है, देखो एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, यहाँ तक है बी नंबर क्वेश्चन का आंसर। सो अभी आए हम क्वेश्चन नंबर सी पे। So what factors prevent a majority of women from enjoying their rights and opportunities? So question number C का आंसर कहाँ से शुरू करना है हम लोग को, यहाँ से। Because of oppressive tradition, superstition, exploitation and corruption, a majority of women are not allowed to enjoy their rights and opportunities. So is the lack of literacy and awareness among women। वहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। अभी आए हैं हम क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट कैन एजुकेशन डू फॉर द कॉज ऑफ वीमेन। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे सी का आंसर खत्म हुआ उसी से हम लोग शुरू करेंगे। देखो एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ वीमेन। तो ये यहाँ से लेके द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन्स एजुकेशन इज़ द की टू ए बेटर लाइफ इन द फ्यूचर। वहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर ई का आंसर भी स्टार्ट होगा, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो हम लोग को कहाँ लिखना है, देखिए यहाँ पे a recent World Bank study says that educating girl is not a charity, it is good economic and if developing nations are to eradicate poverty they must reduce the girls। तो वहाँ से शुरू लेके यहाँ तक लिखना है, तो would ensure education of the family itself। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। तो अगर ये पैसेज एग्जाम में आए तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, पहले की तरह जस्ट लाइन को पिकअप करना है और सेम टू सेम लिख के आना है। तो ये है पैसेज नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट हम आए हैं पैसेज नंबर 3 पे। तो पेसेज नंबर 3 पे देखिए, ये भी 2009 में आ चुका है ऑलरेडी बोर्ड का फाइनल एग्जामिनेशन पे। तो ये किसके ऊपर है, इट इज़ अबाउट द एनवायरमेंटल एंड अबाउट द वाइल्ड एनिमल सी। तो ये स्पेशली पोल्यूशन के ऊपर है। तो पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में किस तरह का इफेक्ट हुआ और जो सी लेवल मैमल के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ा, इसके ऊपर ये पैसेज है। तो शुरू करें हम। इट इज़ अ डिस्टर्बिंग फैक्ट दैट टुडेज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इट इज़ अ स्मॉल पैसेज, यहाँ तक ये ख़त्म होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए देखिए, cite the reasons as to why some species of wild animal are on the verge of extinction। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने ए का टिक करके रखा है। इट इज़ ए डिस्टर्बिंग फैक्ट से लेकर हम लोग को कहाँ तक लिखना है, ग्रीड एंड थॉटलेसनेस तक इसका आंसर है। तो अभी हम आए हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, व्हाट हैज़ ब्रॉट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मच ऑफ द काउंट्री साइड। तो बी का आंसर कहाँ से लिखना है, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ मीन्ड मोर बिल्डिंग एंड विथ it the destruction of much of the countryside that provided habitat for the wild animal। तो बी का आंसर यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को लिखना है। तो अब भी आए हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पे, which animal is hunted for क्वेश्चन नंबर सी पर है, why are the polar bear and the whales under threat। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुरू कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पर बी जहाँ खत्म हुआ है सी भी वही से शुरू हो रहा है आंसर। टू सेटिस्फाई मैंस selfish desire, the polar bear in North America is under threat. Hunted by sportsmen in Borneo and Sumatra, the orang-utan has become part of a smuggling racket in South America. The chinchilla
chinchillas almost extinct because its fur is in demand. Whales are massacred worldwide for the oil and the food they yield. So these are only a few of the species under threat. तो सी क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों को यहाँ से शुरू करके देखिए, यहाँ पर सी है, टू सेटिस्फाई से शुरू करके हम लोग को यहाँ तक थ्रेट तक लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. विच एनिमल इज हंटेड फॉर इट्स फर. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा, ये देखो चिंचिला, यह जो मैंने यहाँ पर सर्कल करके रखा है, ये देखिए चिंचिला, ये होगा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर. चिंचिला इज किल्ड फॉर इट्स फर, क्वेश्चन नंबर डी. तो क्वेश्चन नंबर ई, मेंशन द वेज इन विच वाइल्ड लाइफ करेंटली हेल्प. तो किस प्रकार हम लोगों को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर ई का आंसर शुरू होगा, यहाँ से देखो. To name a few examples, sewage pollution is the river Thames has been greatly reduced. A ban on trading in some parts has been agreed. And organization like Friends of the Earth do valuable work in these deserving causes. तो ई का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर बना के हम लोग को आना है. एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर एफ, यहाँ पर पूछा गया गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ हैबिटेट. तो हैबिटेट का हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है. एडजेक्टिव मतलब विशेषण है जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं. तो हैबिटेट का एडजेक्टिव होगा हैबिटेंट, HABITANT. अगेन आई एम रिपीटिंग, HABITANT, हैबिटेंट होगा. क्वेश्चन नंबर जी, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ए ग्रेट स्लॉटर. तो ए ग्रेट स्लॉटर का यहाँ पर कौन सा वर्ड साइनोनिम समझाता है, यहाँ पर देखो मैंने सर्कल करके रखा है. नंबर जी, मासाकार्ड. मासाकार्ड मीन्स द ग्रेट स्लॉटर. ओके, सो लाइक दिस, अगर ये पैसेज आए तो आप लोगों को इस प्रकार टाइम शॉर्ट में विद इन ए शॉर्ट पीरियड पे क्या करना है, आंसर लेके आना है, एग्जैक्टली एज आई हैव मेंशन्ड हियर. So now I am moving forward to the final passage. So final passage में क्या है, आज की क्लास का फाइनल टॉपिक पर हमने यहाँ पर क्या लिया है. Too many parents these days cannot say no. As a result, they find themselves raising children who respond greedily to the advertisements aimed right at them. So ये पैसेज आज के ज़माने के बच्चों के ऊपर है, जैसे बच्चे लोग जैसे मम्मी पापा के ऊपर किस प्रकार फोर्स करते हैं कोई भी चीज़ एक्सटॉर्ट करने के लिए, और पेरेंट्स देते हैं. जब पेरेंट्स से हर चीज़ मांगने की वजह से मिलते हैं तो आगे जाके ये क्या हो जाता है, इट विल बिकम वेरी डेंजर फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन रिलेटेड ऑन दिस द प्रेजेंट पैसेजेस. सो एट द एंड देयर यू विल सी some questions are given. Number 1 question, what values do parents and teachers want children to learn. क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हम लोग को कहाँ से लिखना है, यहाँ पर देखो मैंने too many parents these days okay cannot say no, as a result they find themselves, वहाँ से शुरू करके हम लोग को क्या करना है, values like hard work, contentment, honesty and compassion. सो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा. यहाँ पे अभी आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून. सो ये 2 का आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, देखो दे ऑल्सो, यहाँ पर देखो दे ऑल्सो हैव व्हेन गिव, यहाँ से शुरू होगा, व्हेन गिवन टू मच टू सून दे ऑल्सो हैव डिस्टॉर्टेड सेंस of entitlement that gets in the way of success in the workplace and in relationship. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, when given. ओके, when given से लेकर रिलेशनशिप तक होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. तो अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, why do today's children want more. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए, Today's kids want much more, partly because there is so much more to want. तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को बना के आना है एग्जाम पे. तो अभी आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, What is the balance which the parents need to have in today's world. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, what parents is to find is a balance between the advantage of an affluent society and the critical life lessons that comes from waiting, saving and working hard to achieve goals.
तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का आंसर लिखना है। व्हाट पेरेंट्स से लेकर कहाँ तक लिखना है, अचीव गोल्स तक लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू सेट लिमिट फॉर चिल्ड्रन। तो क्या कहाँ होगा, जहाँ पर 4 खत्म हो रहा है वहीं से 5 शुरू होगा। चिल्ड्रन नीड limits on their behavior because they feel better and more secure when they live within a secured structure. So फिर older children learn self-control by watching how others, especially parents, act. Learning how to overcome challenges is essential to becoming a successful adult. तो चिल्ड्रन नीड से लेके सक्सेसफुल एडल्ट तक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। सो अभी हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, इस तीनों का हम लोगों को अंदर में क्या करना है, सिनोनिम वर्ड पिकअप करके निकलना है। तो पैरा नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन का आंसर ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। पैराग्राफ नंबर पर कौन सा होगा, यहाँ पर देखो मैंने सर्कल करके रखा है डिस्टॉर्टेड। तो बी का नंबर 1, डिस्टॉर्टेड मतलब क्या है, ए फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। सो ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, डिस्टॉर्टेड। अभी देखो बी का क्वेश्चन नंबर 2 में है वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल का यहाँ पर कौन सा होगा, वैल्यूएबल का यहाँ पर होगा प्रीशियस। देखो मैं यहाँ पर मैंने सर्कल करके रखा है, बी का नंबर 2 क्या होगा, प्रीशियस होगा। और फाइनल में है यहाँ पर कौन सा है, इम्पॉर्टेंट। सो बी का 3 में है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का यहाँ पर कौन सा होगा, एसेंशियल। देखो यहाँ पर मैंने बी का 3 ऑलरेडी सर्कल करके रखा है। So students, like that I am going to end up the class of today. So I hope this will help you to solve out your question, especially for unseen passage writing. So for solving the unseen passage writing, some tricks should be applied. So I have mentioned, or as I have teach you, you apply all those. And if whatever I have selected some unseen passages, if the question is come directly, then there is no second thoughts. So you will get 10 of 10 out of 10 here, 100%. So, and all the best for your coming examination. Thank you for watching. Bye bye. And I have request, please subscribe, like and share my this channel. Thank you for today. Bye bye. Have a good day.